Okay, so we are live on YouTube now. So, yes, a very good afternoon to all of you and also to our today's expert dietitian Shilpa Mittal. So, she's a nutritionist and also a diet consultant. And so, our today's topic will be about salt and how it is related to high blood pressure. So, I welcome everyone on behalf of Just for Heart. So, we provide all of you a very good and very helpful sessions. So, yes, I hand over to you, ma'am, and you can start up the session. Okay, thank you so much. So, hello, friends. A warm afternoon, I should say. So, I'm Shilpa Mittal. I have done my master's in food science and nutrition and have around 20 years of experience. Currently, I'm doing a lot of online consultations and I take online programs also. Like, I take kids workshop, I have a mindful eating program and a meal planning program. So, my today's topic, as you all are aware, is about salt and blood pressure. Let me first tell you a little about the word salt. So, do you all know the word salt comes from a Latin word sal, which means salt. And previously, it was used as a currency for trading. So you will be amazed to know that the word salary, the English word salary, also comes from the word salt. Isn't it amazing to know? Now, salt is the essence of life, right? You all will agree with me. So, what happens when you visit a doctor and the doctor measures your blood pressure and says कि आपका BP high है? What is the first piece of advice the doctor gives you? Or for that matter, घर के लोग या जो भी आपके वेल विशर्स है क्या बोलते हैं सबसे पहले? राइट कि सॉल्ट कम कर दीजिए, सॉल्ट बंद कर दीजिए, राइट? तो जैसे ही ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर की बात आती है, वहां ही एडवाइजेस शुरू हो जाती है कि सॉल्ट कम कर दीजिए या सॉल्ट बंद कर दीजिए. तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हाउ डज अ हाई सॉल्ट डाइट इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर, राइट? तो सॉल्ट की वजह से कैसे हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, क्योंकि जैसे ही डॉक्टर बोलता है सॉल्ट बंद कर दीजिए, ऐसे लगता है लाइफ से स्वाद ही चला गया है, राइट? तो सॉल्ट है क्या? Salt is basically nothing but sodium chloride in its chemical form. तो जितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट हाई रहेगा आपके डाइट में, वो उसी तरीके से ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करेगा. Sodium plays a very important role in maintaining the fluid balance in your body. So जो सोडियम है वो आपके बॉडी में जो पानी की मात्रा है उसके बैलेंस को कंट्रोल करता है. इन शॉर्ट वो किडनीज को सिग्नल देता है कि कब किडनीज में वाटर रिटेन करना है और कब उसको किडनीज से निकालना है. तो अब क्या होता है जब आप हाई सॉल्ट डाइट लेते हो, सो when there is lot of sodium in the diet, the sodium content of the bloodstream also increases comparatively आजू बाजू की एरिया का. So इसके वजह से क्या होता है, there is lot of water coming inside the bloodstream from the other areas because salt holds water. तो जैसे ही ब्लड का सोडियम इंक्रीज होता है, सॉल्ट जो है आजू बाजू के जो एरियाज है वहां से भी वाटर ब्लड के अंदर पुल कर लेता है. तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ब्लड की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है. हार्ट के जो काम करने का हार्ट को जो काम करना होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, हार्ट पे स्ट्रेन आता है एंड दैट्स हाउ वो इंक्रीज फ्लूइड के वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. तो इसीलिए जब आप हाई सॉल्ट डाइट खाते हैं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. अब ये जो हाई सॉल्ट के बारे में मैंने बताया, ये इंक्रीज ब्लड प्रेशर नॉट ओनली अफेक्ट्स जस्ट योर हार्ट
It also affects different arteries, and even the very it disturbs that important fluid balance, जैसे हमने अभी देखा. तो it can also affect the functioning of kidneys, क्योंकि kidneys का मेन काम क्या है? वेस्ट को रिमूव करना. तो अगर किडनीज का फंक्शनिंग अफेक्ट हुआ तो वेस्ट रिमूवल, फ्लूइड रिमूवल बराबर से नहीं होगा और अल्टीमेटली किडनी डैमेज हो सकता है. उसके अलावा बहुत ज़्यादा सॉल्ट अगर आपके डाइट में है तो आपके यूरिन में से कैल्शियम एक्सक्रीट हो सकता है और इसकी वजह से आपको आपकी जो बोन की डेंसिटी है वो भी कम हो सकती है, यानी बोन ब्रिटल हो सकते हैं. ऑस्टियोपोरोसिस करके अगर आपने सुना होगा, जिसमें बोन की जो सॉलिडनेस है वो कम होने लगती है, छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं, तो जल्दी फ्रैक्चर की रिस्क हाई हो जाती है. उसके अलावा आपको ये जान के भी सरप्राइज होगा कि अगर आप बीपी की दवाइयाँ ले रहे हैं और आपने सॉल्ट कम नहीं की है, तो वो दवा का असर भी उतने अच्छे से आप पे नहीं होता. अब आप ये सोच रहे होंगे, ये तो मैंने बताया, लेकिन क्या आपको पता है पूरे दिन में कितना सॉल्ट ज़रूरी है? राइट? सॉल्ट पूरे दिन में कितना खाना चाहिए? तो मैंने यहाँ मेजर करके रखा है, जो मैं आपको बताऊंगी. मैंने आप ही का स्पून लिया है, ये नॉर्मल स्पून है, आप देख सकते हैं. तो ये नॉर्मल स्टील की चम्मच है, वो बड़ी चम्मच नहीं जिससे हम खाते हैं, छोटी चम्मच. इट इज 1 टीस्पून थ्रू आउट द डे एंड इट इज नॉट हीट. पूरी फ्लैट मेजर करके. तो आप समझ रहे हैं पूरे दिन में कितना सॉल्ट खाना चाहिए. ओके. सॉल्ट में जैसे मैंने बताया, इट कंसिस्ट ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड. कोई भी सॉल्ट सोडियम एंड क्लोराइड से बनी होती है और उसमें 40% सोडियम होता है. तो साइंटिफिकली जो सॉल्ट का इंटेक है वो होना चाहिए 2300 मिलीग्राम पर डे, विच इज इक्वालेंट टू 1 टीस्पून. और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ये बताता है कि अगर आपको बीपी है तो आपका इंटेक शुड बी लेस देन 1500 मिलीग्राम पर डे, मीन्स 1 टीस्पून से भी थोड़ा कम. अब आप सोच रहे होंगे हम तो इतना सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं लेते, हमारे घर तो नमक कम खाया जाता है. बहुत सी बार मुझे बहुत सारे मेरे क्लाइंट बोलते हैं, मैम हम तेल, नमक, शक्कर बहुत कम यूज करते हैं. माना कि आप अपने घर में सॉल्ट कम यूज करते हैं, लेकिन मुझे बताइए, आप अचार खाते हैं, पापड़ खाते हैं, आपके घर में कोई मसाले है, सॉसेजेस यूज करते हैं, फरसान यूज करते हैं, भुजियाज हो गए या रेडी टू ईट फरसान है, वेफर्स है, बिस्किट्स है, ब्रेकफास्ट सीरियल्स है, क्या आप ये सब यूज करते हैं? हम कुछ लेवल तक तो ये यूज करते हैं. तो आपको सरप्राइज होगा ये जान के कि 80% ऑफ द सॉल्ट इन आवर डाइट इज कंट्रीब्यूटेड टू थ्रू दिस प्रोसेस्ड पैकेज फूड्स. जो भी पैकेज में आता है फूड, उसका सोडियम कंटेंट हाई होता है, उसमें कुछ लेवल ऑफ प्रिजर्वेटिव होता है एंड हर मोस्ट ऑफ द प्रिजर्वेटिव्स में सोडियम होता है. अगर स्टैटिस्टिक्स जानना चाहेंगे आप, so again this will be a surprising fact for you. Indians generally exceed the daily recommended dosage of salt. और कितने से exceed होता है पता है आपको? हम रोज कितना ज्यादा salt खाते हैं? रिसर्च ने बताया है कि ऑलमोस्ट 2 to 3 times द रिकमेंडेड डोज. मीन्स जो मैंने बताया 1 टीस्पून, हम लगभग 2 या 3 टीस्पून सॉल्ट पूरे दिन में हमारा इंटेक होता है. तो आप बताइए कि आप प्रोन नहीं है हाई ब्लड प्रेशर को. आज या कल ब्लड प्रेशर होना है ना, जो मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया, हार्ट पे लोड आएगा तो प्रेशर बढ़ना है, राइट? लेकिन इसके साथ एक गुड न्यूज भी है. तो ये गुड न्यूज क्या है? हम हमारे जो टेस्ट बड्स है, वी लव सॉल्टी फूड्स, राइट? बट रिसर्च हैज शोन दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप धीरे धीरे करके सॉल्ट का प्रमाण अपने डाइट में कम करते हो तो ग्रेजुअली आप उसको एडजस्ट कर जाते हो बिना आपको पता चले. इजंट इट अमेजिंग? तो क्यों ना इसकी शुरुआत हम आज से ही करें, आज से ही थोड़ा कम. ये FSSAI की टैगलाइन थी. तो क्यों ना हम इसकी शुरुआत करें. सॉल्ट थोड़ा कम होगा तो एटलीस्ट हमारा रिस्क फॉर डेवलपिंग ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा. ओके. इसके अलावा मुझे बहुत सी बार लोग पूछते हैं, मैम हम टेबल सॉल्ट नहीं यूज करते.
बट हम तो सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट ये यूज करते हैं, राइट? तो ये मुझे बताना है अभी आपको, अगर आप मुझे पूछ रहे हो कि इसमें से सबसे अच्छा कौन सा है, तो इट्स लाइक मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द बेस्ट अमंग्स अस ऑल। समझा आपको? हर सॉल्ट में कुछ लेवल ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड सेम होता है, मतलब सॉल्ट सोडियम एंड क्लोराइड से ही बना होता है, और हर सॉल्ट में 40% सोडियम होता है। तो वेदर इट इज टेबल सॉल्ट और रॉक सॉल्ट और सी सॉल्ट और सेंधा नमक, वॉट एवर सॉल्ट यू आर यूजिंग, सब में सोडियम कंटेंट सेम है। तो फर्क कहाँ है? उसके टेक्सचर में फर्क है, उसके थोड़े टेस्ट में फर्क है, थोड़ा मिनरल कंटेंट में फर्क है। Because in the normal table salt, some minerals like calcium and potassium are lost while refining. So if you are planning to use the other types of salt, try and use the unrefined ones so that you get the additional benefits of the minerals. But if you are thinking कि हम वो salt खा रहे हैं, इसमें सोडियम कम है और हमें जितनी मर्जी है हम यूज कर सकते हैं, तो yes, बिल्कुल नहीं, कोई भी सॉल्ट आप यूज कीजिए, लेकिन जो मैंने रिकमेंडेड डोसेज बताया है, नॉट मोर देन 1 टीस्पून। सो सॉल्ट अगर आप ज्यादा खाएंगे तो नेगेटिव इफेक्ट इसका डेफिनेटली आपको सहन करना ही पड़ेगा। तो आइए अब देखते हैं कि सॉल्ट के बारे में तो हमने बहुत बात की, लेकिन इसको कैसे कंट्रोल में लाया जा सकता है, या व्हाट आर अ फ्यू मेजर्स जिससे आप अपनी डाइट का सॉल्ट कम कर सकते हैं। एक तो जहां तक हो सके फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए, स्पेशली दैट स्नैकिंग पीरियड जहां हमारा फरसान बिस्किट्स का इंटेक ज्यादा हो जाता है। अपने फैमिली को यूज टू कीजिए फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने के लिए। जब आप कोई पैकेज फूड्स खरीदते हैं तो प्लीज उसका न्यूट्रिशनल लेबल काफी अच्छे से पढ़िए, उसमें सोडियम कंटेंट प्लीज चेक कीजिए। और जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप कोई भी पैकेज फूड्स कोई भी वेफर्स उठा के उसका एक बार सोडियम कंटेंट चेक कीजिए। आपको हैरानी होगी कि ऑलमोस्ट 2 दिन का सॉल्ट आपको उस पैकेट से मिल रहा है, और हम वो पैकेट हमारे बच्चों को दे रहे हैं। So please make it a point to read the labels, at least the sodium content। और जहां तक हो सके इन चीजों का अपने डाइट में यूज कम से कम रखिए, ताकि बहुत ज्यादा सॉल्ट, जैसे मैंने कहा कि ऑलमोस्ट 80% सॉल्ट इसी से कंट्रीब्यूट होती है। उसके अलावा हम इंडियन बहुत लकी है कि वी हैव लॉट ऑफ हर्ब्स एंड स्पाइसेस। सो वी एज सच ड्राई मेथी लीव्स, पुदीना लीव्स, यू कैन यूज देम एज अ गार्निशिंग। तुलसी है, अजवाइन है, जीरा पाउडर है, ऐसे बहुत सारे जो हमारे सिनेमन पाउडर है, इनका आप एक स्पाइस मिक्स बना के रख सकते हो। डाइनिंग टेबल पे एक स्पाइस बॉक्स बना के रखिए, एंड जस्ट रिमूव दैट सॉल्ट शेकर फ्रॉम योर डाइनिंग टेबल। अपने फैमिली को आदत डालिए कि वो ये सब हर्ब्स और इन सबको यूज करे, rather देन पुटिंग एक्स्ट्रा सॉल्ट और दैट चाट मसाला ऑन थिंग। तो इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। उसके अलावा यस, इफ यू आर ईटिंग आउट, बाहर के फूड में बहुत सॉल्ट होती है, स्पेशली सोडा। सोडा अगेन हैज सोडियम इन इट। तो अगर आप बाहर खा रहे हैं तो उस हिसाब से ऑप्शंस चूज कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि वो कम सॉल्ट डाले आपके खाने में। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज पोटेशियम। अगर किसी को हाई बीपी है तो ट्राई एंड इंक्लूड मोर ऑफ पोटेशियम रिच फूड। Why? Because potassium helps to control, it counter effects the effects of sodium, and it also strengthens your muscles of heart। तो पोटेशियम आपको मिलेगा बनाना में, मिलेगा वाटरमेलन में, मिलेगा जो सीजनल चीजें हैं जैसे सनफ्लावर सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, पॉपी सीड्स है, ये सब में भी काफी पोटेशियम होता है, टमाटो में है। तो आप ये सब इंक्लूड कर सकते हैं। And yes, reducing salt is very important in your diet. So, if you reduce salt, you can definitely live a longer life, and yes, a very healthy life, at least free from complications. So, now let me just take a few questions. Okay, so I have got a few questions. Uh, Manisha has asked me, is salt restriction temporary? So, if you are suffering from blood pressure,
डेफिनेटली इट इज नॉट टेम्पररी. बहुत सी बार ऐसे होता है कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में आ रहा है और आप अच्छे खासे चार्ट एंड यू आर यूजिंग एवरीथिंग, बट नहीं, जैसे ही you increase your salt, your BP will also increase. So salt restriction is definitely not temporary, and it is going to be a permanent thing in your life. Okay, can we give kids sendha namak? So yes, you can give kids sendha namak. Again, keep the usage in the recommended dosage only. And of course, senda namak will give you, use the unrefined one so that it gives you the additional benefit of the minerals which have in it. Okay, someone has asked me, can we go completely off salt? So such types of diets are taking around wherein people hardly use any salt in the diet. Let me tell you that salt बुरा ही नहीं है, सॉल्ट भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वो हमारे नर्व फंक्शन, मसल फंक्शनिंग एंड जो बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है फ्लूइड बैलेंस का, उसके लिए हेल्प करता है. तो अगर आप पूरा सॉल्ट बंद कर देंगे तो हाइपोनेट्रीमिया यानी आपको अनकॉन्शियसनेस, डिजीनेस, फटीग ऐसी फीलिंग हो सकती है. तो सॉल्ट को पूरा बंद नहीं करना है, बट उसको ध्यान से यूज करना है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. So, friends, if you have any further queries, I will be happy to answer them. Even you can mention them in the comments below. ये सेशन के बाद भी मैं below comments में आके आपके queries का definitely जवाब दूंगी. I hope this session was useful to you. So my takeaway message सभी के लिए यही रहेगा कि yes, spice up your life with salt, but cautiously. Thank you so much. Yes, thank you, ma'am, for such a wonderful explanation on salt and the blood pressure topic. This is a very important nowadays also. So, yes, we have some questions from our participants who are watching Sure. us live on YouTube. So, Okay. yeah, so I'll just read it out to you. You just answer to that. So, Sure. our first question is, if a person is having high blood pressure, how much salt they can take in a day? Okay. How I mean, I have just now explained that if you have high blood pressure, definitely doctor will recommend you the salt, but less than, even a little lesser than 1 teaspoon. The higher bracket will be definitely not more than 1 teaspoon. एंड ये 1 टीस्पून सिर्फ, आप ये जो सोच रहे हैं कि ऊपर से जो मैंने टीस्पून दिखाई थी, आई मीन समथिंग लाइक दिस, इससे ज्यादा डेफिनेटली नहीं होना चाहिए. बट इसमें सब काउंट आ जाता है आपका इनविजिबल या हिडन सोर्सेज ऑफ सॉल्ट, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. अगर आप अचार, पापड़, चाट मसाला यूज करते हैं, डिफरेंट सॉसेजेस यूज करते हैं, बाहर का फरसान खाते हैं, तो सब मिला के, और आप जो घर में कुक कर रहे हैं, सब मिला के salt intake should be definitely less than 1 teaspoon. The lesser it is always the better. Okay. Yes, so and it is also good for all the family members along with the blood pressure patient. Right, right. Everybody Yes. will improve their habits. True. Yes, right. So our next question is from Mrs. Anamika. So she is asking कि अगर हमें salt खरीदना है तो हमें मतलब कौन सा salt आप recommend करेंगे हम जो मतलब shops में से ले सकते हैं. Okay, Anamika, see, brand names will be difficult for me to tell, but जब आप salt खरीदते हो, you can use सेंधा नमक, you can use rock salt, but only thing is try and use the unrefined ones. Unrefined ones, जैसे मैंने बताया, उसमें आपको additional benefits मिलेगा. सोडियम कंटेंट कम होगा ऐसे नहीं है, बट एटलीस्ट वो सॉल्ट के साथ कुछ मिनरल्स भी आपको मिलेंगे. तो आपको सिर्फ ये देखना है कि वो रिफाइंड नहीं है, अनरिफाइंड है. तो बहुत सी बार अगर आप लोकल किराना में जाएंगे ना, तो आपको वो ब्रांडेड पर से नहीं मिलेंगे, आपको ब्लॉक्स मिलेंगे. So you can buy that, and you can, I mean, what I generally do is I crush it at home. So Okay. you can do that also. ओके एंड शी इज ऑल्सो आस्किंग कि बीपी पेशेंट ने पूरा मतलब पूरी तरीके से सॉल्ट इनटेक बंद करना चाहिए क्या? नहीं अनामिका, जैसे मैंने कहा, पूरा सॉल्ट आपको बंद नहीं करना है अनलेस
बीपी पेशेंट को कुछ अंडरलाइन किडनी डिजीज है और डॉक्टर ने कहा है कि सॉल्ट नहीं ले सकते या सोडियम इतना ही ले सकते हैं, अदरवाइज पूरा सॉल्ट नहीं बंद करना चाहिए, बिकॉज सॉल्ट हेल्प करता है आपके नर्व फंक्शनिंग, मसल फंक्शनिंग के लिए, और वो फ्लूइड बैलेंस के लिए भी। जो नॉर्मल बैलेंस है वो तो हमें रखना है, उसे नहीं डिस्टर्ब करना है हमें। Right, right. So even the sodium levels in our body is also important. यस। Yes. Okay, so our next question is, so what is your opinion for low sodium salt available in market, whether they should be consumed or not comparatively normal salt? Okay, so I will have to just go back and check the labels, and I will reply this in the comment. As to low sodium salt, if it has potassium in it, yes, you can go for it. I mean, looking at the ingredient list and the nutritive chart becomes very important as to how is it claiming, I mean, why is it claiming it is low sodium. So I will come back to Yes. that question in the comment section. I'll answer that. Yes, right. So our other question is that is there any other spice or masala to substitute salt? Okay, so this is a very nice question. बहुत सारी स्टोरीज भी है इस पे कि सॉल्ट की कमी कोई दूर नहीं कर सकता, एंड लॉट ऑफ थिंग्स. So if you want to have that exact taste of salt, I'm sorry to tell you, but ऐसा कोई भी एक specific ingredient नहीं है which will get you a similar kind of taste of that of salt. But yes, as I said, I have clients, and we have also discussed it, and we generally work out a spice mix depending on their taste. So you can have little jeera powder, dhania powder, chili powder, and few herbs in it, like dried tulsi leaves ka powder, pudina powder. ऐसे आप अपने हिसाब से trial error करके you can make a mix, and that works really wonderfully. I'm not saying don't add salt in it. You can add little amount of salt in it also. But बाकी के जो हम herbs और spices use कर रहे हैं, उससे सॉल्ट का आपको जो अमाउंट है वो काफी कम यूज होगा, बिकॉज उनका फ्लेवर बहुत अच्छा डिश को जाएगा. So just try this out. So keep a masala box Okay. on the table instead of keeping that salt shaker. तो जैसे हमारा मसाला बॉक्स किचन में होता है, मे बी दैट 6 to 8 वाला, ट्राई इट आउट फॉर अ वीक. एक में जीरा पाउडर रखिए, एक में कुछ अजवाइन का पाउडर रखिए, एक में दालचीनी रखिए, एक में ड्राइड लीव्स रखिए, जैसे पुदीना है, मिंट है, यू कैन इवन ड्राई कोरिएंडर. तो एंड देन सी हाउ इज द रिस्पॉन्स. Okay. So thanks for explaining that once again. Yes. Okay. So our next question is low sodium salt good for us? Low sodium salt. Okay, so Yes. again, as I mentioned in the earlier question, I will have to go back, check the labels, and I will reply to you very soon. Okay. And our last question is, if a person has hyponatremia, how to increase salt intake? It's very easy. If you have hyponatremia, आप नींबू और salt का पानी बना के उसको पिला दीजिए, because as I explained you, hyponatria can be because of low levels of salt in the body. So the moment you increase salt, the level will come up and the person will start feeling better. So this is an instant thing which you can do. Yes, and I guess even they can now, as it is summer, so even they can add the salt, a pinch or two of in the buttermilk and have. So Yes, even that can help, I guess. राइट योगिता. सो इट इज नॉट Okay. दैट आपको सॉल्ट सब में से निकाल ही देना है. यू कैन डेफिनेटली यूज सॉल्ट, बट आई थिंक व्हाट इंडियंस बेसिकली नीड टू लुक एट इज द increase in the packaged food consumption over years. Otherwise, we were Right, all well off. Even right. हम अचार खाते थे, पापड़ खाते थे, but then this packaged food have so much of salt in it. That's how we are also wanting to reduce them the salt which they are using at home. So I think if I don't know if the Yes. lockdown has helped them in reducing the packaged food intake, they would be finding some difference in their health. Yes, definitely. So, yes, that was the last question. And thank you, ma'am, so much for making us understand the very much important
and how it is related to our blood pressure levels. So yes, thank you so much for taking such a wonderful session. And last but not the least, all our participants and all the viewers watching us from YouTube, I would like to request all of you to subscribe our channel, and you can also press bell icon to get notifications of such helpful and healthful sessions we are doing regularly. So yes, thank you so much, every one of you, and yes, thank you for today's word also for such a wonderful session. Thank you, Just for Arts, for giving me Yes, this thank, opportunity. Thank you. yes, yes, thank you, thank you.